No, sir. Yes, sir. Okay. Visible na? Screen is visible na? Yes, sir. Okay. Okay. So yesterday we have studied about voltage divider concept as well as voltage divider rule as well as KVL and current voltage in a series circuit. Now today we will discuss about power in a series circuit. Okay. So let's start now. Power in series circuit. So as per the definition of power, power is nothing but product of voltage into current. Okay. So if I will represent the power in terms of resistance, okay, then we know that from the Ohm's law V equal to IR from Ohm's law. Ohm's law. Now put that value of V in this equation. So power will be I R into I. So it will give you I square R, that is P. And if we represent the power in terms of voltage and resistance, this is representation of power, in terms of I and R. Now, if I am going to represent the power in terms of V and R, then again from the Ohm's law we will get V equal to IR, so I equal to V by R from Ohm's law. Ohm's law. And if I will put the value of I here, so we will get P equal to V into V by R. So V square by R. So this is the relationship between power, voltage and current. So this is representation of power in terms of V and R. Okay, so this is the power in series circuit. Condition is all the component, all the resistance will be in series. If R is the resistance, and in previous case, suppose R1, R2, R3 will be in resistance. That is R3, R2, R1, and the voltage is V. So power equal to V square by R total. That is V square by R1 plus R2 plus R3. Again, if I is given, then P in terms of I will be I square, and in this case small I am taking. So I square R1 plus R2 plus R3. So this is the representation of power of a circuit in the series connection of resistors. ठीक है, तो ये दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन हमको मिल सकता है पावर में. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे जरूरत है क्योंकि इन केस ऑफ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू implement the a component or electrical element in a circuit, and we will do the analysis with Thevenin's theorem, Norton's theorem, superposition theorem. Then open circuit and short circuit, that is closed circuit, will be there. So open circuit means, suppose
This is the concept of open circuit and short circuit. Open circuit means सपोज ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, ठीक है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज ओपन पाथ। तुम लोगों के रूम में अभी स्विच बोर्ड है, वहां पे देखो जहां पे मेरा कॉर्ड लगाने का जगह है, दैट इज प्लग पॉइंट, ठीक है, वहां पे देखो ओपन है, उसके साथ कोई कंपोनेंट या कोई भी वायरिंग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड नहीं है। whenever we will give the connection through extension board or plug point, we will get the connection. So this connection is known as open circuit. That means ये जो पाथ है, दो पाथ के बीच का जो गैप है, अगर ये गैप हो जाता है, कनेक्शन कट जाता है, डिसकनेक्टेड, देन इट इज नोन एज ओपन सर्किट। ठीक है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट सेम पाथ, इसी पाथ को लेते हैं, गैप है और इसको जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, ठीक है, लाइक अ ब्रिज। सो दिस इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट और क्लोज सर्किट। So closed circuit we will not use because this is not a good term. So we will use the term short circuit. So open means कनेक्शन नहीं है, लाइक तुम रास्ते से जा रहे हो, रास्ते के बीच में एक नदी आ रहा है, ठीक है, दो रास्ते के दोनों साइड, नदी के दोनों साइड में कोई कनेक्शन नहीं है, सो वी विल से द पाथ इज ओपन, पाथ इज डिस्कनेक्टेड, सो दैट इज ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट, इफ यू विल गोइंग टू गोइंग ऑन अ रोड, ठीक है, and suddenly you are getting a bridge which will connect the two sides of the river, then that bridge will be the link between two sides of the river. So ये हो गया closed circuit और short circuit, short हो गया, that means you can cross the river through the bridge, so that is short circuit। short means connected है, ओपन मीन्स डिसकनेक्टेड है। तो देखो स्विच जो है, तुम लोगों का स्विच घर में अभी अगर किसी के आंखों के सामने कोई स्विच बोर्ड है, वो स्विच बोर्ड को देखो, स्विच बोर्ड का जो प्लग पॉइंट के पास लगा हुआ है स्विच, अगर तुम स्विच को ऑफ करते हो तो वो हो जाता है ऑफ, दैट इज सप्लाई वहां पे आता नहीं है। whenever you are connected a plug point of like टेलीविजन और एक्सटर्नल कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को तुम वहां पे अटैच करते हो, देन यू आर टर्निंग ऑन द स्विच, दैट मींस पावर सप्लाई अब कंप्लीट हो रहा है। तो स्विच through switch we can convert an open circuit to short circuit and वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर शॉर्ट रहता है तो उसको ओपन करते हैं, तो इट विल लुक लाइक दिस, ये दो पाथ है, स्विच, इट विल लुक लाइक दिस। तो स्विच अगर ऑफ है दैट मीन्स ओपन है, इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सो करंट विल नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस। बट अगर स्विच ऑन है दैट मीन्स यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक कनेक्शन है, एंड स्विच इज ऑन, ठीक है, तो दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट है, short circuit, and this is open circuit. So now how we will implement it in our circuit, ठीक है, क्योंकि सर्किट में मेरा वोल्टेज है और करंट है जिसके थ्रू मेरा सोर्स या करंट कंपोनेंट या वोल्टेज कंपोनेंट पास होता है। सो कीप इन माइंड दैट वोल्टेज जो होता है ओपन सर्किट में we will get the value, ठीक है, शॉर्ट सर्किट में नो वैल्यू। इसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले लिख लेता हूं। करंट जो होता है उसका उल्टा होता है, दैट इज ओपन सर्किट में नो वैल्यू एंड शॉर्ट सर्किट में इट हैज सम वैल्यू। सो नाउ क्यों होता है, व्हाई, ठीक है, तो इसका मेन रीजन है वोल्टेज का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन,
Can anybody explain among both of you? Will you explain? What do you mean by voltage? Voltage का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है? वोल्टेज कहाँ से आता है और वोल्टेज किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज? कैन यू एक्सप्लेन? Can you explain what do you mean by voltage? Can you explain? Yes or no? If yes, tell me. If no, I will explain. Can you explain voltage? What do you mean by voltage? Can you explain the concept of voltage? ये voltage क्या होता है? कहाँ से आया? या किसको कहते हैं? Yes or no? Yes or no? If no, then I will proceed. If yes, then tell me. Tell me about voltage. अगर तुम्हारा कुछ तो आइडिया होगा वोल्टेज के वक्त वोल्टेज क्या होता है? Anyone, anyone. मुस्कान और इंद्रानी दोनों में से कोई एक. Can you explain? I am audible, na? Am I audible? Am I audible? Am I audible? I think there is a connection here. Yes, sir. Okay, so we will discuss. Sorry, I discussed the term that is power in series circuit. So power क्या होता है? Power का basic concept होता है P equal to VI. That is the product of voltage and current. Okay, and now voltage is expressed in terms of current and resistance from Ohm's law like V equal to IR. So now if I will represent the terms in either V and R or I or R. Okay, so if I will express the term power in terms of current and resistance only, then it will become P equal to I square R because V के बदले हम I और R का value, IR का value put किए, that is V equal to IR. So it will becomes I square R. So this is the representation of power in terms of current and resistance. Now again V equal to IR, so I can be also expressed in term of voltage and resistance from Ohm's law. Then power also can be represented in the terms of voltage and resistance only. So P equal to V square by R. That is, instead of I am putting V by R. So it will become P equal to V square by R. So now if in a circuit the resistance will be in series or the resistor will be connected in series, then my total power will become V square by total resistance in series. That means V square by R1 plus R2 plus R3.
Similarly, if I will to represent the power in terms of current and resistance only, then also P can be represented as I square into total resistance in series. That means I square into R1 plus R2 plus R3. Clear about that? यहाँ कोई दिक्कत? Any queries? Any doubt in this portion? No, sir. Okay. So now move to the next. That is open circuit and short circuit concept. So open circuit means whenever the path is broken or whenever the path is disconnected, that is open. That means खुला हुआ है. That means open circuit. Open circuit, that means circuit is not completed or not connected. That is open circuit. शॉर्ट सर्किट उसका ही उल्टा सर्किट. दैट मीन्स कंटिन्यूअस पाथ अगर है और दो पॉइंट के बीच में अगर कनेक्शन दिया जाता है, देन दैट पाथ विल बिकम शॉर्ट सर्किट. सो दैट ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है, जैसे तुम रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, अचानक से एक नदी आ रहा है, तो नदी का दो साइड इज नॉट कनेक्टेड. सो नाउ द पाथ इज ओपन, सो यू कांट क्रॉस द रिवर. ठीक है, unless and until you know swimming. Okay, so without swimming or without any boat or steamer, you can't cross the river. So that is open circuit. Now short circuit means I am constructing a bridge which will connect the two part or two port or two sides of the river, एंड द पाथ इज नाउ कंटिन्यूअस. के तुम यहां से आ रहे हो, ब्रिज मिला, ब्रिज क्रॉस करके तुम इस पाथ में गए. दैट मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू पाथ इज शॉर्ट सर्किट. नाउ इन केस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि एक सर्किट में मेरा करंट का ट्रांसमिशन या वोल्टेज का ट्रांसमिशन, और सर्किट को सोर्स मिलता कहां से है, आइदर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. तो वोल्टेज और करंट भी सेम थिंग है. वोल्टेज और करंट जो क्वांटिटी है वो एक पाथ को फॉलो करता है. सो ओपन सर्किट में जब आएगा वोल्टेज, तो वोल्टेज विल हैव सम वैल्यूज एंड दैट वैल्यू विल बिकम जीरो इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट. सिमिलरली करंट में क्या होगा, इसका उल्टा केस होगा. जब ओपन सर्किट आएगा, करंट विल गिव जीरो वैल्यू, एंड इफ द सर्किट विल बी शॉर्टेड और द कनेक्शन विल बी मेड, then the current will flow through that path and the current will give you some values. Now my question is why? So before going to the reason, I have to know about the voltage. Can you explain me what do you mean by voltage, or what is the concept of voltage, or from where the voltage concept is adopted? Voltage क्या होता है? Can you explain or can you tell me? Or according to you, what do you mean by voltage? Anyone? What do you mean by voltage? Audible, na? Am I audible? My voice is clear to you? Yes, sir. But sir, आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर. मैं तो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वोल्टेज जब आता है तो वोल्टेज टर्म, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. सो वोल्टेज, देखो वोल्टेज क्या होता है, तुम लोग 10th में एक टर्म पढ़े हो, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, whenever we are going Yes, to sir. whenever we are going to discuss about the voltage, the term potential difference will be there. Potential difference. Sir, सुने हो ये टर्म? sir, पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि दो वोल्टेज के बीच जो उसका अंतर होता है उसी को सर पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे ना सर. हाँ, ठीक है. एक्चुअली वोल्टेज के बीच में नहीं, दो अलग अलग पॉइंट, सपोज यहाँ पे कि पॉइंट ए है एंड यहाँ पे पॉइंट बी है. तो सपोज ए का पोटेंशियल है, दैट इज वी ए, और बी का पोटेंशियल है वी बी, दैट इज पोटेंशियल. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी written as VA minus VP. So that potential difference is nothing but my voltage. ठीक है, so that is denoted by V. So V अगर potential difference है, but that means
डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पाथ। सो अगर पाथ क्लोज ओपन रहेगा तो देखो ये पाथ और ये पाथ ओपन है, दैट इज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ का वी ए है वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ का वी बी है तुम्हारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। सो आई कैन फाइंड आउट वी बाय सिंपली वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी ए, और इसको हम कह सकते हैं v इक्वल टू वी ए डिफरेंस वी बी। ठीक है, जो जो इसका टर्म बड़ा होगा या जिसको हम कंसीडर करेंगे उसके साथ दूसरे पॉइंट का माइनस। तो ये तभी पॉसिबल होगा जो सर्किट ओपन रहेगा, क्योंकि ओपन रहेगा तो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। ठीक है, तो हम वोल्टेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पाथ क्लोज हो गया तो देखो इस दोनों के बीच में अगर कनेक्ट हो गया, सो देयर इज नो पॉइंट इंडिविजुअली ए एंड बी, ए और बी बोल के कुछ पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, सो वी विल नॉट फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी इंडिविजुअली। सो इफ वी विल नॉट फाइंड द पोटेंशियल ए एंड बी, सो दैट वी कांट डिफरेंशिएट द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मुश्किल है। सो अगर सपोज ये दोनों पाथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहां का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां का होगा, बिकॉज पाथ इज कनेक्टेड। ठीक है, सो अगर पाथ कनेक्टेड है वी ए इक्वल टू वी बी, सो वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अगर हम लेंगे तो वी ए माइनस वी ए हो जाएगा, क्योंकि वी ए इक्वल टू वी बी है। So that will gives you 0. So it will gives you no value, that is 0 value अगर शॉर्ट सर्किट हुआ। सेम थिंग हैपेंस टू करंट। करंट में क्या होगा, करंट एक पाथ को फॉलो करता है, दैट इज करंट। सो सपोज ए एक पाथ है, बी दूसरा पाथ है, तो यहां पाथ में आते आते देखो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो करंट क्या होगा, ए से बी तक जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। सो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। नाउ अगर हम ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक पाथ बन जाएगा। सो करंट यहां से फ्लो होते हुए, यहां से फ्लो होते हुए, यहां से फ्लो होगा। सो आई विल गेट सम वैल्यू, दैट इज I will get some value. So that's why we will get current equal to 0 in case of open circuit, as well as we will get voltage has some value in open circuit. In short circuit, we will get 0 in case of voltage and we will get value in case of current. So if I will represent the voltage and current in terms of short circuit and open circuit, the table will look like this. ये V और I है, ठीक है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट। सो यहाँ पे मेरा ओपन सर्किट में आई विल गेट द वैल्यू ऑफ V, शॉर्ट सर्किट में मेरा V का कोई वैल्यू नहीं होगा, करंट में ओपन सर्किट का कोई वैल्यू नहीं होगा, V का शॉर्ट सर्किट में I का वैल्यू होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आया? एनी परेशानी या एनी डाउट्स इन शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट? ये और एक भी समझा दीजिए ना सर, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा देखो, ओपन सर्किट में क्या होता है, V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मेरा सर्किट ओपन रहा तभी में हम दो पॉइंट मिलेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे डिसकनेक्टेड है, ठीक है, तभी दो पॉइंट मिलेगा। सो अगर दो पॉइंट मिलेगा तभी मैं वोल्टेज को डिफाइन कर पाऊंगा, बिकॉज V इक्वल टू डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, तो देयर इज नो पॉइंट लाइक A एंड B, क्योंकि ये सिंगल एक पाथ है, यहाँ पे कोई भी पाथ A एंड B हो सकता है, तो ये पाथ सेम है। सो A एंड B को डिफाइन करना मुश्किल है। सो V अगर निकालना है तो आई कांट फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू पाथ, बिकॉज ये सेम पाथ है। ठीक है, तो V इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, करंट के केस में क्या होगा,
करंट विल फ्लो थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ। सो पाथ में करंट चल रहा है, देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन है, तो करंट यहाँ पे जाके रुक जाएगा और यहाँ करंट क्रॉस नहीं कर पाएगा, बी तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर बी तक पहुंच नहीं पाया तो क्या होगा, करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यही अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मीन्स ए और बी को कनेक्ट कर दिया, तो करंट क्या होगा, यहाँ से जाते जाते इस पोर्शन को क्रॉस करते करते दूसरे ओर चला जाएगा। सो करंट विल गिव सम वैल्यूज। So if I will make a chart of short circuit and open circuit and corresponding value of V and I, then I will find that V has some value in open circuit and I has some value in short circuit, whereas V has no value in short circuit and I has no value in open circuit. That is the chart of open circuit and short circuit. You have to remember these things whenever we will go to the theorem like Norton's theorem, superposition theorem, Thevenin's theorem, then this type of concept, this concept is very much needed. Okay, so got it? Yes, sir. Okay, so now to find the current through the resistor. Okay, so क्या करता हूँ, पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। अभी मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। दैट मींस रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, नाउ हम देखे थे, अभी क्या देखे थे, नंबर ऑफ, एक मिनट रुको, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि रेजिस्टिव जो एलिमेंट है वो सीरीज में हो कनेक्टेड रहता तो क्या होता। नाउ वी विल सी इफ द रेजिस्टिव मटेरियल और रेजिस्टेंस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, देन व्हाट विल हैपन। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। पैरेलल का मतलब क्या है, एट ए टाइम बोथ द रेजिस्टर और द नंबर ऑफ रेजिस्टर विल कनेक्टेड विद द सोर्स। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं एक सोर्स ले रहा हूं, दैट इज ई। ठीक है, एंड पैरेलल में क्या होता है, पार्ट डिवाइडेड होता है। ये एक रेजिस्टेंस है, एट ए टाइम बोथ द रेजिस्टेंस विल कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहां पे और एक रेजिस्टेंस है, सिंस मैं तीन रेजिस्टेंस को लेकर दिखा रहा हूं तो यहां भी मैं तीनों रेजिस्टेंस लूंगा, दैट इज R3, R2 एंड R1। ये हो गया पैरेलल, क्योंकि पाथ जो है डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखो करंट यहाँ पे आ रहा है, एक जगह पे इधर जा रहा है, दूसरे जगह पे इधर जा रहा है, तो एक इधर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है। एंड नाउ दिस इज फाइनली, एंड दिस इज ओपन टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस अदर रेजिस्टेंस एंड डॉट 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 अप टू Rn। ठीक है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्किट जब करंट में है। ओके, नाउ what will happen in this case of resistance? So सीरीज में अगर है तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn होता है। ये होता है फॉर सीरीज कनेक्शन, दैट इज R टोटल और R इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ पैरेलल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट और 1 बाय R टोटल इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू 1 बाय Rn। ओके,
सो नाउ आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टास्क, अभी करके दो, ठीक है, वो बहुत ही इजी रहेगा। दैट इज, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ई वट एवर इट मे बी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम। तीनों रेजिस्टेंस है। नाउ दैट इज R1 1 ओम, R2 2 ओम and R3 3 ओम है। So now tell me what will be the R equivalent or R total? इसका वैल्यू क्या होगा? Tell me the value of this. Quick. Quick. सर 11/6 ओम। 11 बाई कितना आ रहा है? 11/6 ओम सर। देख लेते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, R equivalent 1 by R equivalent equal to 1/1 plus 1/2 plus 1/3. So that will give 6 plus 3 plus 2. That is 11/6 is the value of 1 by R equivalent. So R equivalent will be 6/11. समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि तुम लोग जहां गलती, मैक्सिमम गलती करते हो, तुम लोग ये वाला कैलकुलेशन यहाँ तक रख के ही छोड़ देते हो, बट ये गौर नहीं करते ये 1 by R टोटल है। एंड माय क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट R इक्विवेलेंट, दैट मींस उसको भी रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। अगर ये भूल जाओ, ठीक है, एग्जाम में अगर ये भूल जाओ तो क्या करना है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot 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 1 by Rn, ये याद रखना, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, बट ये याद रखना। नाउ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम लोग देखोगे मैक्सिमम केसेस में पैरेलल जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू इक्वल रहता है, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एक सोर्स दे देते हैं, वट एवर इज सोर्स में बी, दैट इज 2 ओम 2 ओम 2 ओम। नाउ फाइंड आउट दैट R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट क्या होगा? सर 2/3। 2/3, गुड, 2/3। नाउ इसका एक ट्रिक है कि अगर ऑल रेजिस्टेंस आर इन parallelly parallel connection and value of all resistance is same, then R equivalent equal to resistance value by number of resistance, N equal to number of resistance। देखो ये 2 के बदले अगर 3 कर दो, देखोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है तुम्हारा 3/3 इक्वल टू 1 आएगा, दैट इज 1/3 plus 1/3 plus 1/3, that is equal to 1 by R. So that is 3, 1 plus 1 plus 1, that is 3/3, that is 1/1. So R equal to 1 आएगा।
ठीक है। सो अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 या 5 रेजिस्टेंस रहता है तो नो नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जस्ट you put the value of the resistance, that is 2 by number of resistance, that is in this problem value of the resistance is 2 and number of resistance is 1 2 3, that is 2/3. So R equivalent equal to 2/3. So keep in mind. Okay, now we will move to a circuit, that is सेम सर्किट ले रहे हैं, रिलेट करने में आसानी होगा। 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, R3 R2 R1 एंड V। सो नाउ देखो वोल्टेज पैरेलली इक्वल रहता है, ठीक है, वहीं पे करंट क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड हो रहा है। ये करंट जा रहा है इस पाथ में, एक करंट जा रहा है इस पाथ में, एक करंट जा रहा है, फिर इस पाथ में एक करंट जा रहा है, इस पाथ में एक करंट जा रहा है, ठीक है। सो नाउ वी विल पॉइंट आउट द करंट्स। सो इस पोर्शन को अगर हम जूम इन करेंगे, इस पोर्शन को अगर हम जूम इन करेंगे, ठीक है, इसको जूम इन कर रहे हैं तो आई विल सी दैट यहाँ पे करंट जा रहा है, दैट इज आई मेन करंट। मेन करंट I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, फिर इस पोर्शन को, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, I3 I4 और ये I3 जो है इधर आ रहा है, दैट इज सेम पाथ, ठीक है। सो नाउ करंट जो है डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज इक्वल रह रहा है, ठीक है, करंट जो है डिवाइड हो रहा है सर। हाँ बोलो सर इसमें मतलब केवीएल या केसीएल पुट कर रहे थे सर? केवीएल कब पुट कर रहे थे, जब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चीज Yes, डिवाइड sir. हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि Current- बात अलग है, तो यहाँ पे current. हम केसीएल पुट करेंगे। एंड सिंस सीरीज में क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज डिवाइड डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल या करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। एंड करंट डिवाइडर रूल इज नथिंग बट द डिग्रेडेड वर्जन ऑफ केसीएल। करंट डिवाइडर रूल को अपडेट करके केसीएल इंप्लीमेंट हुआ। So now we will see how that current division rule or current divider rule is implemented in this circuit. Yes, तो sir. यहाँ पे देखो, नाउ ये सर्किट को मैं कंप्लीट करता हूँ, नाउ टोटल सर्किट को कंप्लीट करता हूँ, दैट इज E, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टर है दैट इज R1, यहाँ पे और एक रेजिस्टर है दैट इज R2, यहाँ पे और एक रेजिस्टर है दैट इज R3। सो नाउ यहाँ पे V दे रहा हूँ, ठीक है, सिंस यहाँ पे मैंने V लिया हूँ इसलिए मैं यहाँ पे भी V दे रहा हूँ। सो V इज पैरेलली इक्वल रहेगा, तो इस पोर्शन का V पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। सो देखो इस पोर्शन में करंट का अमाउंट कितना होगा, अकॉर्डिंग टू योर ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या कहता है, इस पोर्शन का So V equal to IR. V equal to I2R to R1. So I2 equal to V by R1. Similarly, I3 equal to, sorry, I4 I4 equal to V by R2 as well as I3 equal to V by R3. So ये तीन आएगा मेरा ओम्स लॉ से, ठीक है। नाउ एंटायर जो करंट है, ये देखो एंटायर करंट ये डिवाइड होते होते गया, ठीक है, इन टोटल, बट मेरा वोल्टेज सोर्स से जो करंट का अमाउंट है वो कांस्टेंट है। ये खर्चा हो गया, सपोज तुम 100 रुपया लेके बाहर निकले हो घर से, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे
दुकान मिला, यहाँ पे तुम 10 रुपया खर्चा किए, फिर बाकी रह गया तुम्हारे पास 90 रुपया। 90 रुपया लेके फिर गए, फिर यहाँ एक दुकान आया, तो यहाँ दुकान में तुम 30 रुपी खर्चा कर दिए। तो अभी तुम्हारे पास कितना रहा? 60 रुपीज, एंड दैट 60 रुपीज इज इन्वॉल्व इन दिस। सो टोटल तुम्हारा कितना खर्चा हुआ? टोटल तुम्हारा कितना खर्चा हुआ? क्या सर? 100 रुपया लेके गए थे, 10 रुपया I2 में खर्चा किए, I4 में खर्चा किए तुम 30 रुपया, और I3 में 60 रुपया। तो देखो, तुम जितना पैसा लेके गए थे उतना ही पैसा खर्चा हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा तुम्हारे पास बचा क्या है, तो जितना लेके गए थे माइनस खर्चा, दैट इज 0। ठीक है, सो एंटायर I इक्वल टू, आई कैन से I2 में एक खर्चा हुआ, I4 में एक खर्चा हुआ, I3 में एक खर्चा हुआ। तो दिस इज बिकम्स V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो तुम्हारा खर्चा, टोटल खर्चा कितना हुआ? दैट इज V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दैट इज योर एंटायर खर्चा। तो ये जो अमाउंट है दैट विल बी 0। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास अभी करंट कितना बचा है, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? I माइनस I2 प्लस I4 प्लस I3, that is nothing but 0, and that is known as KCL, Kirchhoff's current law, that is algebraic sum of all currents। ये तुम्हारा, ये करंट का डायरेक्शन किधर है? ये करंट का एट दिस नोड, ये करंट का डायरेक्शन है इस साइड में। तो I से खर्चा होके कुछ गया I1 में और कुछ गया I2 में। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर I2 चला गया इधर, तो I1 रह गया बाकी, तो I1 आगे जाके डिवाइड हो गया I3 और I4 में। सो अगेन I1 इक्वल टू I3 प्लस I4। So I can say I equal to I3 plus I4 plus I2. That is nothing but your KCL। देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, I3, I2 and I4। ठीक है, so this is KCL, that is Kirchhoff's current law, that is algebraic sum of all currents is 0। Okay, so this is KCL। Now KCL जहां पे अप्लाई हो रहा है वहां पे हम पता हो रहा है कि वो एक नोड पे होगा। दैट मीन्स एक नोड, पर्टिकुलर एक नोड पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, दैट इज इलस्ट्रेशन ऑफ केसीएल। तो देखो, यहाँ पे नोड का नोड इन्वॉल्व हो रहा है जो मेरा सीरीज में नहीं था। तो नोड इन्वॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। जहां पे नोड मिलेगा वहां पे करंट डिवाइड होगा। वेयर देयर इज ए नोड, बी श्योर दैट करंट इज डिवाइडेड। ठीक है, सो करंट सिंस डिवाइड हो रहा है, सो वी विल से इन दिस सर्किट, in the above circuit, I is divided। So we will say current divider circuit can be introduced where there will be node। अगर नोड है तो हम कहेंगे वहां पे करंट डिवाइडर है। दैट मीन्स वी विल implement current division rule or current divider rule, or in short it is known as CDR। This CDR is very much important to solve your problem
in superposition theorem or maximum power theorem, or you can say थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, सो नाउ हम देखेंगे ये करंट डिवाइड कैसे हो रहा है, हाउ द करंट विल बी डिवाइडेड। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सर्किट लेते हैं, चलो वही पुराना सर्किट ही ले लेते हैं, सेम सर्किट लेते हैं। दैट इज V, R1, R2, R3। सो लेट इट I इधर फ्लो हो रहा है, इधर I1 फ्लो हो रहा है, इधर I2 फ्लो हो रहा है, और इधर I3 फ्लो हो रहा है, लेट इट बी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया I4। ठीक है, सो नाउ द सर्किट इज कंप्लीटेड बाय गिविंग द नोटेशन ऑफ द करंट। नाउ I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू, I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, क्विक बताओ, I1 का वैल्यू क्या होगा। I1 यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है और V है, वोल्टेज है V, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, I1 का वैल्यू क्या होगा, V by R1. गुड, एक मिनट रुको, एक मिनट, V by R1, वेरी गुड। लेफ्ट हो गए थे सर। अच्छा, वो करंट एक सर्किट दिए, तो नाउ वी विल सी करंट डिवीजन रूल क्या फॉलो होता है। तो करंट डिवीजन रूल के लिए मैं एक सर्किट लिया हूं जिसमें 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्टेड है, एंड आई गिव द नोटेशन ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस लाइक I1, I2, I3। सो V at this point I1 will be V by R1। ठीक है, तो I2 क्या होगा, V by R2 सर। V by R2। So similarly, I3 equal to V by R3। Okay. So now we will see what will happen now. So total current, that is total current, I equal to, as per KCL, I1 plus I2 plus I3, that is the total current. So now total current is V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Okay, so now V by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. That is my V. So now again we will take the terms voltage. अब मैं देखूंगा वोल्टेज का रिस्पेक्टिव ये क्या है, V इक्वल टू I into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये लिख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन कंटिन्यू हो रहा है, तो ये I इक्वल टू V इंटू दिस है। तो नाउ देखो ये जो पोर्शन है ये जाना पहचाना पोर्शन लग रहा है, ये जाना पहचाना, वो तो V का वैल्यू है, ये है, हाँ, तो ये जो पोर्शन है ये जाना पहचाना वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट R इक्विवेलेंट। यस सर। ठीक है, सो दैट इज I इंटू R इक्विवेलेंट। सो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये मेरा इस एनालिसिस से इन्वॉल्व हुआ। नाउ ये याद रखना, ठीक है। नाउ
अब मैं इंडिविजुअल करंट को एक्सपेक्ट करूंगा, दैट इज इंडिविजुअल करंट I1 क्या है, दैट इज टोटल वोल्टेज बाय R1। सो टोटल वोल्टेज क्या है, V। सो V का वैल्यू ये लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ V, दैट इज V इक्वल टू, दैट इज V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट बाय R1। ठीक है। सो नाउ अगर हम I1 को निकालें, दैट इज I टोटल को निकालें, I टोटल इक्वल टू I1 R1 बाय R इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं। यस सर। ओके, सो okay, so that is my entire finding, that is V equal to I, so R equivalent। okay, so now my current division rule हम फॉलो करेंगे। अब करंट डिवीजन रूल में आते हैं, डायरेक्ट हम लिखते हैं I1 इक्वल टू V बाय R1। सो V का बदले क्या लिख सकते हैं, V के बदले I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो 1 बाय R1 R इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, टोटल I इंटू R, टोटल I इक्वल टू R टोटल बाय रेजिस्टेंस इन I1, resistance through which I1 flow। ठीक है, ये याद रखना, रेजिस्टेंस थ्रू which I1 flow। ठीक है, नाउ इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको एक इन जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे। नाउ I1 इक्वल टू V बाय R1 इक्वल टू 1 बाय R1 इंटू I इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, सो नाउ देखो, अब मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 1 बाय, सो यहाँ पे क्या होगा, R1 R2 R3, that is R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2। ठीक है, सो नाउ ये जस्ट मैं डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, I इंटू 1 बाय R1 इंटू R1 R2 R3 बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी, ये कैंसल आउट हो जाएगा। सो I इक्वल टू I इंटू R2 R3 R2
R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा करंट थ्रू I1, करंट थ्रू I1। ओके, सो ये तुम याद रखना। ठीक है, अगेन जब मेरा I2 में मेरा कितना करंट फ्लो होगा, देखो I2 में मेरा कितना करंट फ्लो होगा, टोटल करंट। ठीक है, यहां पे देखो I1 एसोसिएटेड रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो न्यूमरेटर पार्ट में R1 मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, I2 में यस R2 है, तो यहाँ पे R2 मिसिंग होगा, इंटू तो R1 R3 आर। और नीचे वाला पोर्शन सेम रहेगा। यस सर। ठीक है, अगेन I3 दैट मीन्स I टोटल इनटू, ये क्या होगा बता दो। सर R2 इंटू नहीं R1 इंटू R2 सर। हाँ ठीक है, R1 इंटू R2 बाई तुम्हारा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इंडिविजुअल करंट, कौन से एरिया में कितना, कौन से रेजिस्टर में कितना फ्लो कर रहा है। तो ये करंट डिवीजन रूल क्यों इंप्लीमेंट हुआ, टू शॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। कि देखो अगर मैं इंडिविजुअल करंट और वोल्टेज का इक्वेशन लेके निकालता एक एक करके तो बहुत टाइम लगता, तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट डिवीजन रूल के थ्रू इसको निकाल दूंगा कि करंट इन द रेजिस्टेंस I, सपोज ये है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल करंट इनटू multiplication of resistance, that is multiplication of resistance except I particular resistance except the resistance of जो particular resistance whole divided by your R2 R3 plus R1 R3 plus R1 R2। ठीक है, that is multiplication of combination of the resistance, combination of resistance। ठीक है, तो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। नाउ ये मेरा सीडीआर का रूल है, तो ये रूल को याद रखना, टोटल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3। वही अगर R3 होता, R4 तक होता तो क्या होता, R1 R2 R1, तो अगर यहाँ पे मेरा 4 रेजिस्टेंस होता, ठीक है, यहाँ पे मेरा सपोज 4 रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे सपोज 4 रेजिस्टेंस होता, तो कोई कॉपी तुम लोगों के पास होगा अभी, ठीक है, या पेज में भी लिख लो, मैं एक दे रहा हूं 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4। ठीक है, तो क्विक बताओ मुझे I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू कितना होगा, I3 का वैल्यू कितना होगा एंड I4 का वैल्यू कितना होगा, मैं V है यहाँ पे, तो क्विक टेल मी I1 कितना है, से लेट I total is the total current, total current कितना होगा क्विक।
according to the formula. Just put the value and get the formula. I just put the value in the formula and get the answer. Quick. सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है अभी? हाँ सर अभी आ रहा। ठीक है, देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हूं, ठीक है। ये एग्जांपल में I1, I2 और I3 का वैल्यू यहां से कंपेयर करके निकालो, इस पोर्शन से कंपेयर करके निकालो क्या होगा। I1 का वैल्यू क्या होगा, I2 का वैल्यू क्या होगा, I3 का वैल्यू क्या होगा। Sir, I1 equal to R2 into R3 plus R4 by R2 इंटू R3 इंटू R4 होगा। yes sir. हाँ, मल्टीप्लाई होगा। हाँ, I टोटल इंटू R2, R3, R4 बाय कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है तो 2 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, दैट इज n-1 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है तो n-1 दैट इज 3 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज R1, R2, R3 प्लस R2, R3, R4 प्लस R3, R4, R1, ठीक है। और एक होगा R1, 2, 3, 2, 3, R1, R2, R3, R2, R3, R4, R2, 1, 2, 3 and that is R1, R2, R4, ये कॉम्बिनेशन होगा। दैट मीन्स देखो नीचे का कॉम्बिनेशन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। R1, R2, R3, R4 है तो हर एक में एक एक करके रेजिस्टेंस को निकाल दो। पहला कॉम्बिनेशन होगा R2 को निकाल दो तो क्या होगा R2, R3 एंड R4। देखो R2, R3, R4। दूसरा कॉम्बिनेशन में R2 को निकाल दो, बाकी R1 को रख दो। तो R2 को अगर निकाल दोगे तो क्या होगा R1, R3, R4, R1, R3, R4। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा R3 को निकाल दो, ठीक है। तो R1, R2, R4, R1, R2, R4। और चौथा कॉम्बिनेशन में क्या होगा R4 को निकाल दो तो R1, R2, R3। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन। सिमिलरली I2 होगा, दैट मीन्स I2 होगा इक्वल टू I टोटल इंटू R1, R3, R4 बाई R1, R2, R3 प्लस R2, R3, R4 प्लस R3, R4, R2, R1 plus R1, R2, R4. Okay, similarly you can find also the value of I3 and as well as I4. So that is the basic concept of current division rule. Okay, now मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। बस जितना प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। वैल्यू है 6, 3
2 ohm, 2 ohm, and this is the current, that is voltage is 24 volt. So find out the value of I1, I2, I3. ठीक है, I1, I3, I4, ठीक है, निकालो। करंट डिवीजन रूल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, करंट डिवीजन रूल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वल टू 12 एम्पियर होगा क्या सर? I1 इक्वल टू 12 एम्पियर, यस करेक्ट। I2 इक्वल टू सर 8 एम्पियर गुड, एंड I3 और इक्वल टू 4 एम्पियर। good, very good. So that's how that's why we will use I1 equal to, that is I1, not II. That is I1 equal to total voltage by R1, that is 24 by 2, that is 12 ampere. I2 equal to 24 by 3, 8 ampere, and I3 equal to 6 by 24 by 6, that is 4 ampere. Good, very good. So now using current division rule I am giving you a question. हाँ बोलो। सर सर 5 मिनट का ब्रेक नहीं सकता है सर? खाना आ गया तो फिर लेने जाना पड़ेगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, 5 मिनट तुम दोनों ही 5 मिनट का 5 मिनट के बाद अवेलेबल हो जाओगे ना? यस सर। और दोनों एक ही साथ हो गया? हाँ सर, दोनों एक ही साथ है सर। अच्छा ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। So now using current divided rule, or a question, using current divided rule, सप्लाई दे रहा हूँ, वोल्टेज मैंने मेजर नहीं कर रहा हूँ। R1 का वैल्यू है तुम्हारा 10 ओम, ठीक है? R2 का वैल्यू है 20 ओम, and this is I1, this is I2, and my total current is 50 ampere. 50 ampere. So total I is 50 ampere, R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm. So find I1 and I2. इसको फाइंड करो। यहाँ पे देखो तुम CDR का जो है करंट डिविजन रूल का एक नया और एक शॉर्टकट मेथड यूज कर पाओगे जब दो रेजिस्टर होगा, जब दो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? सर I1 50 एम्पियर एंड I2 25 एम्पियर सर। I1 50 एम्पियर, I2 25 एम्पियर, देखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन, ओके सर। सॉल्यूशन
मैं I1 निकालूंगा, दैट इज I टोटल इनटू कौन सा रेजिस्टेंस होगा, दैट इज एक्सेप्ट R1, तो बाकी क्या रहा R2, और यहाँ पे क्या होगा कॉम्बिनेशन, सो 2 रजिस्टर है, सो 2 माइनस 1 कॉम्बिनेशन, दैट इज एक कॉम्बिनेशन होगा, तो एक कॉम्बिनेशन क्या क्या है R1 प्लस R2, ठीक है, दैट मीन्स R1 R2, ये कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टर्स का। सो पहले मैं क्या करूंगा R1 को क्रॉस कर दूंगा तो बाकी रहा R2, और दूसरे में क्या करूंगा R2 को काट दूंगा तो बाकी रहा R1। सो ये हो गया आई टोटल का वैल्यू 50, R2 का वैल्यू 20 बाय 10 प्लस 20, सॉरी 10 प्लस 20, दैट इज 100, सॉरी 1000 by 30, which will give you 300 by 3, that means 33.33 ampere। I2 क्या होगा, I total into R2 नहीं रहेगा तो R1 हो जाएगा, यहाँ पे R1 प्लस R2, सो इसका वैल्यू क्या होगा 50 इंटू 10, 10 प्लस 20, 50/3 सर। so 50 by 3, so 50 by 3 that means 16.66 or 16.667, I can write 16.67। तो यहाँ पे देखो करंट डिवीजन का रूल का नया हम नजरिया क्या देखेंगे, अगर रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 2 रहा, ठीक है, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस will be 2, sorry will be 2 and they both are connected in parallel, so CDR क्या होगा, करंट डिवीजन रूल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, I ऑफ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इक्वल टू I टोटल इनटू, अब मैं देखूंगा दो रेजिस्टेंस आता है तो क्या होता है, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर, तो अगर मैं I1 ले रहा हूं तो मैं इसको कंसीडर करूंगा I टोटल इंटू 20, I2 लेता हूं तो इसको कंसीडर करूंगा I टोटल इंटू 10। सो ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के ऑपोजिट ब्रांच में है, ये इसका खुद का एक ब्रांच है, ये इसका खुद का एक ब्रांच है, तो आई कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ opposite branch divided total resistance, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको दूसरे नजरिए से लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच। तो I1 अगर हाँ है तो I टोटल इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिट ब्रांच दैट इज R2 बाय R2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज R1। ओके, सो ये हो गया CDR इफ देयर आर ओनली 2 रेजिस्टेंसेस व्हिच विल कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दोनों अलग, ठीक है, ये ट्रिक है, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा दो रेजिस्टेंसेस के बीच में, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट मेथड हम क्या करेंगे, हर एक चीज को 3 रेजिस्टेंस दिया गया या 4 रेजिस्टेंस दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसका वेरी शॉर्टकट, क्योंकि ये नॉन जो फॉर्मूला है ये याद रखना इजी है, तो इसके कंपैरेटिवली मैं दूसरे फॉर्मूला को या दूसरे सर्किट को इंप्लीमेंट करूंगा। सो नाउ मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये वाले एग्जांपल को ले रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा 20 वोल्ट मैंने नहीं दिया है, ठीक है, सपोज 24 वोल्ट नहीं दिया हूं, दैट इज V, और यहाँ पे I टोटल कितना आया था, दैट इज
मेरा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना था, दैट इज 12, 8 एंड 4, दैट इज 24. 12 plus 8, 20 plus 24 एम्पियर. सो आई इक्वल टू 24 एम्पियर. नाउ मैं कॉरेस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूला में इसको पुट करके देखूंगा. तो देखो जब मैं I1 ले रहा हूं, I1 का निकाल रहा हूं, तो ये छोड़ के बाकी जितना भी ब्रांचेस है ये ऑपोजिट ब्रांच है, सोर्स पॉइंट का अलग है. ठीक है, सोर्स पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ से डिवाइड होके इधर जा रहा है, तो इस ब्रांच को छोड़ के बाकी जितना भी है ये ऑपोजिट ब्रांच है. तो ऑपोजिट ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा. तो ये ऑपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगा, that is I1 and this is 2 ohm and opposite branch का रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल है, तो 1/3 प्लस 1/6, तो कितना आएगा 6, 2 plus 1, that is 6/3, so that is 2 ohm. so ये हो जाएगा 2 ohm. ठीक है, गॉट इट, यस और नो? यस सर. ओके, नाउ अब I1 क्या होगा, I1 इक्वल टू I टोटल 24 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिट ब्रांच 2/2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच 2. सो 24 इंटू 2/4, सो 12 एम्पियर. आंसर आया. नाउ I2 क्या होगा, I2 देखो, नाउ I2 जब कैलकुलेट करूंगा मतलब ये ब्रांच हो जाएगा मेरा मेन ब्रांच, और ऑपोजिट ब्रांच क्या होगा, सोर्स पॉइंट के अलावा मेरा ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, ये दोनों ऑपोजिट ब्रांच हो जाएंगे. तो 2 और 6 ओम दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/6 प्लस 1/2, दैट इज 1/, so 1/6, that is 1 plus 3, that is 6/4. ओके, सो 6/4 को 6/4 ही रखते हैं. तो I2 हो जाएगा टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच का करंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6/4, 6/4 बाय 6/4 प्लस 3. तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, 6 इंटू 6/3, तो कितना आ रहा है 18/4. okay, so now 6 into 6 into 4/18, एट एम्पियर. देखो I2 कितना आया था तुम्हारा, 8 एम्पियर ही आया था. नाउ I3 जब होगा तब I3 जब होगा तो I3 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो सोर्स पॉइंट के अलावा, ठीक है, इसका ऑपोजिट ब्रांच क्या होगा, ये I2 और I1 जहां से फ्लो कर रहा है, तो ऑपोजिट ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टर होगा 1/3 प्लस 1/2, सो 1/3 प्लस 1/2, so that is 1/6, 2 plus 3, so that is 6/5. so I1 total current 24 ampere into 6/5 by 6/5 प्लस यहाँ का करंट कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 6. सो ये हो जाएगा 24 इंटू 6/5 इंटू 36, 5/36, so 4 एम्पियर. देखो तुम्हारा आंसर मैच किया बाय यूजिंग CDR. यस सर. नाउ नेक्स्ट इज, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओवरडोज हो जाएगा. ठीक है, ओके सर. ओके, थैंक यू ऑल. हेलो हाँ बोलो. सर एक मिनट सर हल्का सा बता दीजिए ना सर फिर से.
फिर से सर मतलब क्या बता रहे थे? ठीक है, तुम कहाँ से ज्वाइन किए हो? सर अभी सर जस्ट ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किए हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से शुरू से सर आप हाँ बोलो। मतलब डेली डेली क्लास, आप डेली क्लास करवाइएगा इस टाइम। देखो तुम लोग अगर खाली है हर दिन शाम शाम के 7:40 से, तो मैं 7:40 में एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तुम लोगों का भी बैकअप देना जरूरी है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन जो तुम लोग मिस किए हुए हो, ठीक है। तो यस सर करेंगे लगभग हम लोग पकड़ तो के मतलब। रखो, हर दिन होगा, ठीक है। तो जिस दिन नहीं होगा मैं तो उस दिन यस सर। तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो मैं एक बार फिर से सर बता रहा हूँ कि आज पिछला क्लास में यस सर मैंने थोड़ा सा कहा था बता कि दीजिए। हाँ बोलो। सर सर बोल रहे हैं कि आप जो नोट्स भेजिएगा तो सर उसमें सब ग्रुप में सेंड करें या जो जो इसमें अभी ऐड है क्लासरूम में उसको ऐड देखो उन्हीं लोगों को ग्रुप में मतलब ये सेंड करे कर दो, भेजे। मैं तो सिंस मैं किसी एक को भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं यस सर। किसी एक को भेज दूंगा, वो कन्वे कर देगा ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर सकते हो, इंडिविजुअली सेंड कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए आए, ठीक है। ओके, सो प्रीवियस यस क्लास हम लोग सर क्या जो जो किए। हाँ बोलो। मतलब सर बोल रहे हैं कि जो जो क्लास में ऐड है उन्हीं लोगों को भेजना है या फिर ग्रुप में सबको भेजना है। डिपेंड्स अपॉन यू, ग्रुप में भेज सकते हो, जो जो नया है उन लोगों को भी भेज सकते हो, ठीक है। नोट्स मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैंने कहा है, मैंने अगर तुम नोट्स भेजते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। अच्छा वो बाद में सोचना ना, अभी पढ़ाई करूँ रुको ना। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने यस क्या कहा था, सीरीज कनेक्शन, रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, प्रीवियस क्लास में तुम थी अनामिका, राइट। हरिहर जी हरिहर। यस सर। हम्म, तो देखो प्रीवियस क्लास में हम सीरीज कनेक्शन पढ़ाए थे कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होता है तो क्या होता है, वहां पे हम लोग देखे थे कि वोल्टेज डिवाइड होता है। तो नाउ वोल्टेज यस डिवाइड सर। हो गया, नाउ पावर देख रहे हैं कि सीरीज सर्किट में पावर क्या होता है। पावर इन सीरीज सर्किट इज जस्ट related to the normal equation of the power, that is power equal to v into I. now v को हम I और R के रिस्पेक्ट में इन रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इक्वल टू आई आर। सो पावर में सिंस v और I दोनों का वैल्यू है, तो दोनों को इंडिविजुअली हम पावर को I और R एंड v और R के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर I और R के रेस्पेक्ट में हम पावर को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और V और R के सर रेस्पेक्ट, हाँ बोलो। सर हम लेफ्ट कर सकते हैं हाँ क्या हाँ सर हाँ हाँ, एक्चुअली कोई दिक्कत कुछ नहीं है, काम था। कोई दिक्कत नहीं। ओके सर थैंक यू सर। और अगर तुम P और एक मिनट, P और P को I और R के रेस्पेक्ट में हम V और R के रेस्पेक्ट में हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो जस्ट I इक्वल टू V बाय R पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे जो पावर का एक्सप्रेशन है वो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R आ, ठीक है। तो ये हो गया P पावर इन सीरीज सर्किट इन टर्म्स ऑफ I R एंड V R, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मैंने यहाँ पे एक सर्किट दिखाया था कि अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस है और तीनों सीरीज में है तो उसका पावर क्या होगा। दैट इज P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, दैट इज आर टोटल इन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और वही अगर करंट और रेजिस्टेंस के थ्रू हम इसको डिफाइन करेंगे, तो इट विल लुक लाइक दिस, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टोटल। सो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 R3। ये हो गया मेरा सीरीज का पूरा एकदम सर कॉन्सेप्ट। वहाँ आई स्क्वायर, सर आई स्क्वायर नहीं समझ में आया सर, कहाँ से मतलब आया? यहाँ से देखो, पहला इक्वेशन जो है ये वाला पोर्शन, यस सर पी इज इक्वल टू आई आर। P इक्वल टू आई आर नहीं, P इक्वल टू वी आई, ठीक है। P इक्वल यस टू सर वी वी आई। आई एंड V इक्वल टू आई हाँ आर। सो P इक्वल टू यस V के बदले आई आर पुट कर दो, तो आई आर इंटू आई
सो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब समझ में आया कहाँ से आई स्क्वायर आया? यस सर। ओके, यस तो सर। इस टोटल को हम P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब आर टोटल दैट इज सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर का वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंटेशन। तो ये टोटल हो गया तुम्हारा सीरीज कनेक्शन। कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में रहेगा तो इतना पावर रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट में दिया हूं इसीलिए कि ये इन फ्यूचर तुम लोगों को काम में आएगा। तो पहले हम जानेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। सपोज तुम्हारे सामने अभी स्विच बोर्ड है, यस सर। ठीक है। स्विच बोर्ड में देखो एक प्लग पॉइंट दिया हुआ रहता है जहां तुम मोबाइल का चार्जर लगाते हो, ठीक है। वो प्लग यस सर। पॉइंट जब स्विच ऑफ रहता है तब वो ओपन रहता है, दैट मीन्स वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ओपन मतलब क्या है? यस सर। डिसकनेक्टेड, कि उस वो पोर्शन खाली है। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये डिसकनेक्टेड है। ये तुम्हारा प्लग पॉइंट है और ये तुम्हारा चार्जर पॉइंट है। दोनों आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में करंट सप्लाई नहीं होगा, यस सर। ठीक है। अगर तुम इन दोनों को यस। कनेक्ट कर रहे हो, कि चार्जर को तुम अटैच कर रहे हो प्लग पॉइंट के साथ, कनेक्ट कर दो, दैट मीन्स ये सर्किट एक पाथ हो गया। तो ये पाथ हो गया तुम्हारा शॉर्ट सर्किट। जैसे तुम रास्ते से अगर चल रहे हो तो बीच में एक नदी आया या खड्डा आया, तो तुम खड्डे के उस पार जा नहीं पाओगे क्योंकि यू आर डिसकनेक्टेड, योर रोड इज डिसकनेक्टेड विद द ऑपोजिट साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सर्किट। यस। अगर वहीं पे हम एक ब्रिज बना देते, ठीक है, तो दोनों को कनेक्टेड हो गया। नाउ यू कैन पास थ्रू दैट ब्रिज, ओके, सो यू विल फ्लो थ्रू द पाथ। सो आई कैन से शॉर्ट सर्किट। तो ओपन सर्किट मतलब याद रखो कि डिसकनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट मतलब कनेक्शन कंटिन्यूअस है, कनेक्टेड है। ठीक है। यस सर। नाउ ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के ऊपर डिपेंड करके मेरा वोल्टेज और करंट का वैल्यू डिपेंड करता है। तो सिंस अगर वोल्टेज को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर देखो, अगर मेरा सर्किट ओपन रहेगा तो ही मेरा दो अलग अलग पॉइंट मिलेगा मुझे। अदरवाइज अगर कनेक्टेड रहेगा, अगर हम बोलेंगे दो पॉइंट निकालो यहाँ, तो तुम निकाल पाओगे पर्टिकुलर? नो सर। ठीक है। नहीं तो सर। तो अगर मेरा ओपन है तभी मेरा अलग अलग दो पॉइंट निकलेगा। अगर अलग अलग दो पॉइंट निकलेगा तभी मेरा डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा, अदरवाइज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं होगा। तो अगर यस डिफरेंस सर। बिटवीन टू पॉइंट होगा देन ओनली वोल्टेज विल बी देयर। सो वोल्टेज ऑलवेज विल बी इन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में आई कैन मेजर द वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? मेरा पॉइंट नहीं होता है, कोई अलग अलग पॉइंट नहीं होता, कंटिन्यूअस पाथ होता है, तो वहां पे वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते। करंट का कॉन्सेप्ट क्या है? करंट देखो, करंट एक पाथ में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सपोज यहां से तुम चल के इधर आ रहे हो, देख लो इधर कनेक्शन नहीं है, डिसकनेक्टेड है, सो यू कांट जंप थ्रू दिस पाथ, तुम जंप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये करंट क्या होगा? मेजर नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो नहीं होगा? ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कनेक्शन हो जाता है तो एक कंटिन्यूअस पाथ रहता है, तो करंट क्या होता है? आराम से फ्लो करता है उस पाथ में। सो करंट विल फ्लो इन द शॉर्ट सर्किट। So voltage will be there in open circuit and current will flow in the short circuit, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, दैट इज, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन किया कि वोल्टेज होता है दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर मेरा कनेक्शन कंटिन्यूअस रहा तो ऑब्वियसली डिफरेंस का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सो आई विल नॉट गेट द वोल्टेज। एंड करंट होता है क्या? एक कंटिन्यूअस पाथ में चलता है। अगर ओपन सर्किट रहा तो मेरा पाथ कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो वहां पे हम करंट नहीं मिलेगा मुझे। तो करंट के लिए चाहिए शॉर्ट सर्किट। तो वोल्टेज के लिए ओपन सर्किट, करंट के लिए शॉर्ट सर्किट। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स याद है, ठीक है। नेक्स्ट इज यस। यस सर। पैरेलल सर्किट में मेरा रेजिस्टेंस। अभी तक देख रहे थे कि रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में होता है जस्ट समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा? यस सर। पैरेलल में होगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 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 अप टू 1 बाई Rn।
ये है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ तुम्हारे पास अगर पेन यस एंड सर। पेपर है तो क्विक ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो। ये पैरेलली है। नाउ पुट इट इन दिस इक्वेशन। तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यूज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वैल्यू मत सर देखो, ये वैल्यू गलत। इसको बाद में देख लेते ना सर, आप हाँ हल्का सा समझा दीजिए, इसको हम बाद में देख लेंगे। इसको हम बाद में देख लेते ना, आप समझा दीजिए ठीक है, बाकी जो है। ठीक है। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये तुम देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा यस टास्क सर, है। यस सर, ठीक है, ले लिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज, अगर तुम्हें वो प्रॉब्लम ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट 1/rn, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई टोटल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एक्चुअली अगर तुम यस भूल जाओ, ठीक है, तो बेसिकली मुझे याद यही रखना है। ठीक है, ये वाला जस्ट ट्रिक। नाउ इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर देखोगे मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल दिया रहता है। तो सीरीज कनेक्शन में अगर इक्वल रेजिस्टेंस वैल्यू है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन आर लिखते थे ना, कि रेजिस्टेंस का वैल्यू आर और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एन। ठीक है, वही यस चीज सर। अगर पैरेलल में है तो वो हो जाएगा आर बाई एन, अगर सेम वैल्यू ऑफ बाई एन। रेजिस्टेंस रहा तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ओके, नाउ कम टू द यस सर। entire detailed diagram of your parallel connected resistance in a circuit। so देखो सीरीज में क्या हो रहा है, मेरा वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। पैरेलल में क्या हो रहा है, देखो एक दो नोड्स है, नोड क्रिएट हो रहा है कि नोड, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, तो यहाँ पे नोड्स क्रिएशन हो रहा है। तो नोड्स क्रिएशन होगा तो मेरा करंट डिवाइड होगा। ठीक है, पैरा सीरीज कनेक्शन में देखो नोड क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर मैं प्रीवियस क्लास में जाऊं तो देखो प्रीवियस क्लास में देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नोड क्रिएट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक मेश क्रिएट हो रहा था, लूप क्रिएट हो रहा था। यस तो यहाँ सर। पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यस करंट सर। सेम था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज सेम रहेगा, तो करंट अब डिवाइड हो वोल्टेज रहा है। सेम है। ठीक है, तो सिंस करंट इज डिवाइडेड सो यस वी सर। कैन से करंट डिवाइडर, दिस सर्किट इज नथिंग बट द करंट डिवाइडर। और ये करंट डिवीजन के थ्रू हम लोग जो रूल इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज करंट डिवीजन रूल। और वहां पे सीरीज में क्या था, केवीएल इंप्लीमेंट हुआ था क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे पैरेलल है, करंट डिवाइड हो रहा है, तो इन दिस केस वी विल इंप्लीमेंट द केसीएल। तो केसीएल अगर पुट करेंगे तो देखो केसीएल का फंडा क्या है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, दैट इज केसीएल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इस पाथ पे वोल्टेज करंट क्या होगा, I2 V कांस्टेंट है, तो V मेरा वैल्यू यस। कांस्टेंट रहेगा, तो V बाय R1 इक्वल टू I1, यहाँ पे I2 है तो I2 इक्वल टू V बाय R1, I4 इक्वल टू, यहाँ पे V सेम रहेगा, V बाय R2, एंड I3 यहाँ पे V सेम है तो V बाय R3। तो ये हो गया मेरा तीन करेंट्स इन दिस थ्री पाथ। तो टोटल करंट, वहां पे वोल्टेज सेम था, वोल्टेज खर्चा होते होते आ रहा था, यहाँ पे करंट जो है खर्चा होते होते जाएगा। तो इन शॉर्ट टोटल करंट विल बी नथिंग बट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस and this resistance। so I can say I equal to I2 plus I4 plus सर I3। बोलेंगे यार हम पहले हेलो। ठीक है, तो ये यस सर। नथिंग बट योर KCL। so that is I2 plus I4 plus I3, that is the total current, and I minus I2 plus I3 plus I4 equal to 0, that is the statement of KCL। okay, so now हम यस सर। without applying KCL I will find the करंट डिवीजन रूल के पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना हो रहा है, बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर 50 रेजिस्टेंस है
ठीक है, 50 रजिस्टर्स आर देयर। सो हर एक ब्रांच में हम रजिस्टर में करंट कैलकुलेट करके टोटल करंट नहीं निकालेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम यस लोग क्या सर। करेंगे, करंट डिवीजन। यस सर। तो करंट डिवीजन रूल का क्या फंडा है? करंट डिवीजन रूल का मेन फंडा है, तुम यहाँ ये देख लो, दैट इज पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट जो हमको निकालना है। लाइक I1 फ्लो हो रहा है R1 में, तो आई हैव टू कैलकुलेट I1। तो I1 को हमको अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I टोटल के टोटल मेरा I कितना खर्चा होगा, दैट इज I टोटल इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सेप्ट द रेजिस्टर ऑफ that I which is flow through the particular resistance, that means I total into इस R को छोड़ के बाकी जितना R है इनका मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर मैं I1 को निकालूंगा तो I1 इक्वल टू I टोटल इनटू R2 into R3 into R4 whole divided by n minus 1 combinations of R। ठीक है, तो n माइनस वन, यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, तो मैं क्या लूंगा, 3R का कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, नीचे वाला पोर्शन को R1 R2 R3 R4 ये कॉम्बिनेशन होगा मल्टीप्लीकेशन का। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस R को ओमिट करूंगा, तो मेरे पास बाकी क्या रहा, R2 R3 R4। तो यहाँ पे होगा इस केस के लिए, तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा R2 R3 R4 प्लस नेक्स्ट R1 को पहले ओमिट किया, फिर R2 को ओमिट करूंगा, तो मेरे पास बाकी क्या रहा, R1 R3 R4 R1 R3 R4 प्लस मैं नेक्स्ट R3 को ओमिट करूंगा, तो R1 R2 R4 R1 R2 R4 फिर क्या होगा, R4 को ओमिट करूंगा, तो R1 R2 R1 R2 R4। तो ये हो जाएगा नीचे का डिनोमिनेटर का पोर्शन। ठीक है, सो नाउ ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस सर्किट का तुम I1 I2 और I3 और I4 निकालो। ठीक है, यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर मैं सर यहाँ पे, हाँ बोलो सर यहाँ पे n-1 बोला, थोड़ा नहीं समझ में आया। n-1 मतलब कितना रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। 4 है, तो मैं 3 आवर्स का कॉम्बिनेशन लूंगा, 3 आवर्स का कॉम्बिनेशन। तो देखो मेरा अगर 4 आवर होता तो 4 आवर का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता, R1 R2 R3 R4 होता। ठीक है, तो मैं n-1 दैट इज 4 माइनस 1 कॉम्बिनेशन, n-1 दैट इज 3 कॉम्बिनेशन लूंगा। तो 4 आर है तो 3 कॉम्बिनेशन लेना है, तो हर एक बार मैं क्या करूंगा, एक आर को ओमिट करूंगा, दैट इज पहला बार ओमिट करूंगा 1 को। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन, ये नीचे वाले पोर्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पहले अगर मैं 1 को ओमिट कर दिया, हाँ यहाँ पर अगर 5 होता और 5 होता तो हम 4 तक ही लेते ना, तो यहाँ पे R5 होता। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस होता, तो फिर मेरा कॉम्बिनेशन क्या होता, 4 कॉम्बिनेशंस होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले R1 को ओमिट करता तो 4 R का एक कॉम्बिनेशन बनता, फिर मैं R2 को ओमिट कर देता, फिर 4 R का कॉम्बिनेशन बनता, फिर R3 को R4 को R5 को कॉम्बिनेशन, मतलब मेरा समझ गया 4 R का कितना कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नाउ यूजिंग दिस you have to solve this equation, that is यस सर, हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को तुम I1 I2 निकालो, जहां पे I का वैल्यू है 24 एम्पियर। ठीक है, तो 24 एम्पियर, तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या होगा, I टोटल इनटू जिस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है उसको छोड़ के बाकी रेजिस्टेंस, दैट मींस 20 बाय, यहाँ पे 2 R है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, R1 R2, बट n-1 कॉम्बिनेशन ऑफ R लेना है, दैट मींस 1 R का कॉम्बिनेशन लेना है। तो एक बार R1 को ओमिट करो तो R2 बढ़ेगा, प्लस दूसरा बार R2 को ओमिट करो तो R1 रह जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यस सर, ओके, सो ये यही हुआ आज का क्लास में। ठीक है, तो कल कोशिश करना से रहना। ठीक है,
ये सर हम करते सर, लेकिन पता नहीं था कि मतलब होगा या नहीं होगा अच्छा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरू से रहोगे तो क्या होगा, ओके सर, अभी देखो थैंक यू मैं सर। टोटल 1 घंटे 10 मिनट का एक क्लास मैंने क्या 10 मिनट में तुमको बताया, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट इजी था। अगर यही थ्योरम पार्ट में होता तो ये तुम्हारे लिए भी समझने में दिक्कत होता। ठीक है, यस ओके, ठीक है, सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके।